जिस सेशन का बेसब्री से इंतजार था सिंस अ लॉन्ग टाइम, वो आज कंडक्ट हो रहा है। तो हाउस द जोश भी एक बार चैट में लिखेंगे एंड वील वेट फॉर 2 more minutes ताकि बाकी सब लोग ज्वाइन कर लें। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत ही बढ़िया। तमन्ना ने ज्वाइन कर लिया है, प्रियांशु ने ज्वाइन कर लिया है, ग्रेट। एंड आयुषी ने भी ज्वाइन कर लिया है। अ, मैंने को होस्ट बना दिया है। प्रियांशु, तमन्ना, आयुषी, आपको आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। ग्रेट। हाँ जी गाइस, तो वील वेट फॉर 2 more minutes, देन वील स्टार्ट द सेशन। ग्रेट, सो आयुषी इज ऑल्सो हेयर। Yeah. ग्रेट 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 गाइस। सो प्रियांशु is from KPMG, तमन्ना is from EY and Ayushi is from Deloitte, आपकी सारी फेवरेट फर्म्स। ऑल द मेंटर्स आर हेयर टू गाइड यू। और आपके जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे आंसर होंगे, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज द बिग फोर जहां हम सब जाना चाहते हैं। हमारे इंटरव्यूज भी लाइंड अप हैं, चाहे कैंपस के चाहे ऑफ कैंपस के। तो व्हाट इट टेक्स टू गेट इनटू अ बिग फोर, हाउस द वर्क प्रोफाइल, व्हाट आर द इंटरव्यू क्वेश्चंस, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कमिंग ऑन टू तमन्ना। तमन्ना, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे भाई, कैसी रही है अभी तक की जर्नी? ईवाई का सफर कैसा रहा? ईवाई में जाने का सफर कैसा था? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कैसे वहां तक पहुंचे एंड व्हाट इट टेक्स टू गेट इनटू अ बिग फोर। Hi everyone. Hope I am audible to everyone. Yes, I think audio video is clear. Yeah. और तमन्ना Sure, के Archit बारे sir. में बता दो। तमन्ना से मैं जुड़ा हूँ पिछले 6-7 साल से एटलीस्ट। और Yes, और बहुत चीजें आपको लर्न करने को मिलेंगी। आप जब अप्रोच करेंगे तमन्ना को, शी विल बी देयर टू हेल्प यू ओवर लिंक्डइन ऑल्सो। definitely. और अगर फर्म में रेफरल पोजीशन होंगी तो आपको रेफर भी करा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी। Definitely. Thank you so much, Archit sir, for taking this up and inviting me to the meeting as well. So, guys, yes, me and Archit sir know each other from like around 6, 7 years. Let me tell you about my journey from the starting and when I met Archit sir and from there the journey with EY as well. So like let's skip my schooling and college and everything. So I have started my chartered accountant in the year 2014, and by the time of 2019 I have cleared my chartered accountant. Meanwhile, I have also done my articleship along with the course because I was from the direct entry. Apart from that, I I worked with Arun Kyagarwal and Associate, where I met Archit sir when I was semi-qualified, not completely qualified. So I worked there as a semi-qualified. Post that, I work in few other firms just to gain experience and all that. Meanwhile, I had cleared my chartered accountant, and in the post-COVID phase around it, I start looking for a change as well because their situation in, as you know, there was various layoff going on. Situation was not that great in the overall economy level, country level. So at that time I was also giving interviews over various firms, all the like big four industry, everything. So somehow I got the opportunity with EY Global, and from there, like I gave the interview, cracked the same, and around August 2020 I started with my job with EY Global. Overall, guys, it has been a great experience till now. It has, like, from the initial phase also. Obviously, I enjoyed my CA because there was a CA journey as well, because there was a complete motivation. Yes, I'll be become CA, and that was a great motivation for me. That there will be lot of opportunity for future as well. But when I struggling with job, also finding, that was another motivation for me, because then I got the EY, which was, yes, I got my dream job with one of the big four, which everybody dreams of. And that too is also in the phase where, like, there was a lockdown, things were not going great. So at that time I found my one positive thing, that is joining with EY. And till now, guys, I have like had a great experience, lot of learning, lot of exposure I got with the onshore team. From the work front, like, I have been as of now a lead senior on majority of clients from variety of industry. Obviously, I cannot name all of it, but I have looked into the audit of
industries from like FMCG, technology, Nestle, I can say one of the major client for which the audit I do. So overall, like the team is also great, helpful, people, everything. Uh, the learnings are great, the onshore people are great, like overall team is very great. So yes, I had a great journey till from then when I was like cleared my chartered accountancy with when I was semi qualified, and till now I learned a lot, and yeah, Right. overall it's been a great journey. राइट राइट ग्रेट तमन्ना। एंड आई गेस कि जब सीए कर रहे होते हैं ना तो बहुत सारे अंदर मन में ऐसे इच्छाएं होती हैं, आई वुड से, कि भाई ऐसे बड़े बड़े Exactly. ऑफिस देखने को मिले और ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज मिले, ऑफशोर की अपॉर्चुनिटीज मिले। तो आई थिंक बिग फोर इज दैट प्लेस जहाँ से शायद ये सारे सपने जो हम सीए की जर्नी में देखते हैं वो सारे पूरे हो सकते हैं। ग्रेट ग्रेट। आपने नेस्ले का नाम लिया, तो जब मैं डिलॉइट में था, डिलॉइट इंडिया में था, तो हम भी नेस्ले को ऑडिट करते थे। एंड गाइस आपको याद होगा बीच में एक फेज आया था जब मैगी को बैन कर दिया गया था, आपको याद हो? उस पीरियड में Yes. नेस्ले रिपोर्टेड अ लॉस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डेकेड। पहली बार 10 साल में हुआ था जब नेस्ले का लॉस हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ वन प्रोडक्ट। जब थिंक कि भाई कितनी डिपेंडेंसी एक मैगी प्रोडक्ट पे थी उनकी, राइट? तो ग्रेट तमन्ना, ग्रेट टू हियर अबाउट योर जर्नी। सो कमिंग टू आयुषी। आयुषी, आई गेस आप डिलॉइट में हैं, और हमने जब भी पोल कराया है, हमने जब भी विद इन बिग फोर का पोल कराया है ना कि भाई कौन सी ड्रीम कंपनी में आप जाना चाहते हैं, ई वाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डिलॉइट, ट्रस्ट मी, मोर देन 70% पीपल वांट टू गो टू डिलॉइट। आज भी चार्ट में लिख के बता दो गाइस। और ये डिलॉइट की तरफ ये भेदभाव क्यों है? बताओ मेरे को, चार्ट में बताओ कि आज भी ड्रीम कंपनी कौन सी अमंग्स द बिग फोर। तो आज आयुषी है, आयुषी बताएंगी हाउ टू गेट इनटू डिलॉइट, और डिलॉइट में ऐसा क्या है जो बाकी बिग फोर्स में नहीं है। ठीक है? Yeah. सो आयुषी, या वी लव लव टू हियर अबाउट योर जर्नी, कैसे आप डिलॉइट तक पहुंचे, एंड कैसा वहां पे चल रहा है, हाउ इज द वर्क एंड एवरीथिंग। ओवर टू यू। Yeah. So Achit, right now I'm not with Deloitte. ओके Recently I joined Grant Thornton GT. ओके But the experience with Deloitte was awesome. It was some personal reason that I had to like resign, ओके and so yeah. So in fact Deloitte में अगर placement की बात करती हूँ तो I got the opportunity from Thinking Bridge only. Like there's a placement प्रोग्राम, like राइट program, yeah. So I राइट enrolled in that. So everything was very smooth. I don't know about the other big fours. I have done my like articleship from a mediocre firm. So I was little bit concerned कि big fours में जाएंगे कैसे काम होगा, but that was very like smooth everything, the onboarding and the working everything, and the सब जो वहाँ की teams होती है like वहाँ पे जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस में बात करूंगी, आई डोंट नो अबाउट इंडियन प्रैक्टिसेस, उसकी तो थोड़ी नेगेटिव रिव्यूज मिलते हैं, बट ग्लोबल प्रैक्टिसेस में जो भी टीम मेंबर्स होते हैं आपके वो बहुत हेल्पिंग होते हैं, चाहे वो लाइक आपके ऑनशोर के हो ऑफशोर के, जो भी बाहर आपके साथ टीम क्लाइंट काम कर रहे हैं सभी बहुत ही लाइक कोऑपरेट करते हैं, राइट एंड राइट yeah, so due to some medical reason I had to resign from Deloitte, and ओके। I'm again like trying to go there only. अच्छा, ग्रेट Yeah. ग्रेट 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 Yeah. ग्रेट। ग्रेट टू हियर दैट। ठीक है, तो अब इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह पे आएंगे। फर्स्ट लेट्स कम टू प्रियांशु। तो प्रियांशु, हमारे टाइम पे देखो, आज से 10 साल पहले ये होता था कि केपीएमजी में बेस्ट वर्क कल्चर मिलेगा, और लड़कों के लिए और भी एक चीज होती है कि सबसे अच्छा, समझ गए ना, वो वहीं पे मिलेगा। ठीक है? तो आज के टाइम पे क्या है, एंड हाउ डिड यू गेट इनटू केपीएमजी, हाउ द वर्क कल्चर, हाउ द वर्क प्रोफाइल, एंड आपकी जर्नी कैसे रही थी अभी तक? प्लीज, ओवर टू यू। Yeah, so first of all, hi everyone, and hi Chit sir for inviting me here. So yeah, like starting with my articleship, so I have been a part of top 10 CFM, which is SS Kothari Mehta and Company, which is in Delhi. So I was a part of internal audit team, and I've cleared my CA final in May 22, and then just after that I joined KPMG Global Delivery Center. So yeah, जैसा कि आपने अभी बोला वर्क कल्चर, सो वो अभी भी, वो मैं मेंशन भी करने वाला था, वो अभी भी बहुत ही अच्छा है वर्क कल्चर, एंड ऑब्वियसली, एंड इफ आई टॉक अबाउट द
gender ratios, obviously, female Right. is like more compared to the male. And मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एकदम ऑपोजिट होगा गाइस। yeah, it is there. So तो ये दो बहुत ही लाइक अच्छी चीज मुझे लगती है। एंड और दूसरा, केपीएमजी में एक्चुअली लाइक मैं कोर ऑडिट में नहीं हूँ। इंस्टेड देयर इज अ डिपार्टमेंट कॉल्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो जस्ट टू एक्सप्लेन इन वन लाइन, इट्स काइंड ऑफ research and development team for the entire global delivery center. So ओके what we do is like the handbooks and the article which you see on different accounting and auditing topics in the public domain. So our work is to basically go through the recent updates and make those updates in those handbooks. ओके And we are also a part of developing the internal trainings for the audit team. So we develop ओके training, writing exam questions and all. So this is my current work profile. So yeah. Right. Great, Priyanshu. So you are basically the knowledge hub of the entire KPMG, basically. Yeah, you can say that, yeah, because we have to read a lot of things related to IFRS, US GAAP and all that. So, राइट, तो अब जब कोई भी अपडेट आए, कोई भी बजट के अपडेट्स आए गाइस, तो यू नो whom टू कांटेक्ट, ठीक है ना? yeah, प्रियांशु if के it पास is जाना है related तो to accounting standards and also, yeah, definitely. ग्रेट, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। राइट, सो अब आते हैं गाइस सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे कि भाई यहाँ पे पूछा क्या जाता है, बिकॉज मेनी पीपल हैव गॉट द शॉर्टलिस्टिंग फ्रॉम कैंपस ऑल्सो। कैंपस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, and some of the global arms of the big four, big six is coming to campus। PwC FDC आ रही है, KPMG आ रही है, GT का ऑफ कैंपस चल रहा है, थिंकिंग ब्रिज के थ्रू भी चल रही हैं। तो मेनी अपॉर्चुनिटीज आर देयर करेंटली। कितने राउंड्स होते हैं और क्या क्या वहां पे पूछा जा रहा है इन द रिस्पेक्टिव राउंड्स, जितना भी ध्यान है, वी लाइक टू हेयर फ्रॉम यू एंड हाउ टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो कमिंग टू तमन्ना, तमन्ना से शुरू करते हैं। Hi everyone. Uh, so first of all, yes, like Archit sir said that if you need any referral for job interviews or anything, definitely you can connect me on LinkedIn or anything. Like I can give you a guidance, so no worry about that. Okay. So yes, if we come to the interview from the interview aspect part, first thing, guys, I would like see there's a different requirement as per the different global companies. Okay, so and also basis the interviewer judgment also. Suppose you give everything like 100%. That today also I took one interview in EY, so there is a option like whether you want to like clear the candidate in first round only, or you want to further move that candidate to next round. So this depends like how you clear your interviews in the first round only. Okay, it depends whether you will be shortlisted in that round only, or you will further move on to the next round. Okay. Regarding the general guidance that I would like to give you for the interview, first thing, guys, can never be nervous, scared, or like you feel like nothing is going right. Always be on confidence, smiling face, proper present. Like you, just imagine this should be a best day of your life on the day of interview. So you have to present yourself feeling with that feeling only. Obviously, everybody is nervous, scared. That is completely understood. But yes, the confidence should be there. And तो guys, मैंने before मैंने the मैंने ना उसका तमन्ना एक क्रैक हैक भी बता रखा है कि भाई रणवीर सिंह के गाने सुन के जाओ, अपने आप कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, ठीक है ना? ततड़ ततड़ और वो जो जो हाई एनर्जी सॉन्ग्स है ना। yes, यस, हाँ, यस, सारे मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो गाइस, बिकॉज देखो अगर सपने देखे हैं तो पूरे तो डेफिनेटली होंगे। सारे मोटिवेशनल सॉन्ग्स यू कैन हेयर बिफोर द इंटरव्यू, while studying for your interviews. Okay, so definitely that is also like morale booster. Like so yes, never be scared for that part. Okay. कितने राउंड्स हुए थे तमन्ना आपके टाइम पे, और क्या क्या पूछा गया था उनमें? Archita, मेरे टाइम पे when I gave the interview, like it was in हम्म, 2020 starting. So मेरे टाइम पे it was like only one round. Okay. So अच्छा, beside the from the guidance perspective, guys, there will be a, like lot of your soft skill question only. First, like tell me about yourself and basically your strength and weakness to judge your like communication capacity, whether you are speaking everything in that confident, or you are getting nervous, or you are like
fumbling over your answers, kind of. Okay, so you have to be, because see, these are simple questions. So just you need to present your confidence level and show that yes, you have the capability to the interview. And if I come to the technical aspect of this, I think if I, like basis what I remember they have asked me, and basis the today which I have asked the interview, that is depend on that was generally of a like i- the sequence goes from the easy to Hmm. advanced, kind of. But guys, basically in overall summary mode, in overall summarization, you have to basically read whatever you have read while in your journey. Okay, so that is not something new you have to read. Ensure that you know each and like each content of as much as possible. Definitely 100% perfection cannot be there, and you know, don't know what they ask, but remember that you know the as much as content of balance sheet, PNL. Okay, because they ask those like tricky concept. For example, if I tell you, if they might ask you about the provisions, bad debt, amortization, depreciation. Why I'm saying those? Because these are questions that sometimes they ask like tricky accounting concept. Then they ask about the various accounting standard. Okay, like what is give the brief of accounting standard to uh accounting standard regarding the revenue or leases, important accounting standard. They might ask you regarding audit procedure, what is substantive or analytical, phases of audit, or like materiality, different like concept wise question. They might ask you about the case studies also. There you need to, I would suggest you to highlight something which you have done extraordinary while in your articleship period, which you have noticed something and how you handle that situation, because they wanted to assess like how you will handle something when you are in pressure, when you have multiple deadlines or a case study type questions. Okay, so basic these parameters they will ask you, but it will not going to be that tough considering you are very new to the journey, like your journey career is just started. But better prepare not everything, because everything cannot be prepared, but at least make an effort to go through those concepts which you have already done while doing your CA journey. Got it. Right. So basic accounting questions, basic auditing questions, and one Yeah. thing very important highlighted guys over here is कि आपके रिज्यूमे में से या फिर आपकी जर्नी में से if you are able to highlight some of the instances or examples that will help to give an assurance to the recruiter कि हाँ आप ये काम कर सकते हो. Right. Right. Great तमन्ना. So आयुषी आपके इंटरव्यू की क्या स्टोरी थी? How many rounds were there and what questions were asked in the respective rounds? या सो अर्चित, लास्ट ईयर मैंने डिलॉयट का दिया था इंटरव्यू एंड इस साल जीटी का दिया है, एंड दोनों का ही सेम होता है बिकॉज जीटी भी बिग फोर्स की तरह ही है, दैट इज बिग बिल्कुल. फिफ्थ फॉर्म. या Right. सो सबसे पहले तो आपका एचआर राउंड होगा. Okay. सो एचआर राउंड में इट्स लाइक वेरी बेसिक. आपसे सैलरी Hmm. की एक्सपेक्टेशन पूछेंगे और लाइक आप रेडी हो यानी आप ज्वाइन कब कर सकते हो, आपकी अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हो तो आपके नोटिस पीरियड क्या है. ये Hmm. क्वेश्चंस आपको आएंगे लाइक एचआर राउंड में. तो वो Hmm. तो बहुत ही बेसिक होता है. बस वो ये कंफर्म करते हैं कि आप लाइक रेडी हो फॉर द टेक्निकल राउंड. एंड इन द Hmm. टेक्निकल राउंड डेलॉयट में और जीटी दोनों में मेरा दो दो राउंड हुआ था. एज सच टेक्निकल राउंड्स में डिफरेंस नहीं होता है. बस ये है कि फर्स्ट राउंड थोड़ा इजी होता है कंपैरेटिवली, बट आपको बहुत डिफरेंस नहीं मिलेगा. बट जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम ही होते हैं. और लाइक मैंने स्टैट ऑडिट का दिया था, और Hmm. अगर आप लाइक यूट्यूब में अभी बताती हूँ कि क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, किसके अराउंड होते हैं, बट अगर आप उसके अलावा भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो, या फिर आप थिंकिंग ब्रिज के भी क्वेश्चन के लिस्ट हैं स्टैट ऑडिट के. Exactly. तो Now हमने तो वो अब पूरे आंसर के साथ पूरी गाइड बुक राइट. प्रिपेयर कर दी है. हाँ, मैंने तो एक्चुअली वही सिर्फ पूरा पढ़ा था, उसमें Okay. सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं. तो वो तो आप मतलब उतने क्वेश्चंस आई गेस सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है. प्लस बस उसके साथ ये करना है कि आपको वही जो आर्टिकलशिप के साथ आपने जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर हुए हैं उसको ऐड कर लेना है. स्पेशली वो फ्रॉड से रिलेटेड मैंने दोनों जगह पे मेरे को पूछा था, जीटी में भी एंड डेलॉयट में भी, कि फ्रॉड से रिलेटेड आपने कुछ फाइंड किया है. इन्वेंट्री एंड फ्रॉड पे बहुत फोकस करते हैं कि लाइक प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्या था. तो वो पूछे ना पूछे, बट अगर वो टॉपिक आता है तो आप उसे प्रैक्टिकल अगर एक्सपोजर के साथ रिलेट करोगे तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा. देन बेसिक ऑडिट
पूछते हैं कि हाउ डू यू ऑडिट पीपी, लाइक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हाउ डू यू ऑडिट कैश। तो ये कुछ मेजर एरियाज हैं। तो मेजर एरियाज में आपको रहेंगे पीपी, कैश, डेटर, इनके ये ऑडिट करने को पूछते हैं कि व्हाट इज द ऑडिट प्रोसीजर। एंड देन लाइक कुछ थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे रेवेन्यू हो गया हमारा 115, इंडेक्स 115 एंड 116 लीजेस, इसके थ्योरी क्वेश्चंस मेनली पूछते हैं। रेवेन्यू में तो थ्योरी क्वेश्चंस ही रहते हैं बहुत। तो वो ये बोलेंगे कि जो 5 स्टेप मॉडल है उसे आप विथ एग्जांपल समझाओ, लाइक एक केस स्टडी खुद से बना के। तो वो आप प्रिपेयर करें ना, 5 स्टेप मॉडल भी आपको याद हो, प्लस उसके जो भी एक उसके साथ में एग्जाम्पल लेके उसको आप एक्सप्लेन करोगे। तो वो खुद से ही बोल सकते हैं, नहीं भी बोलेंगे तो आप एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना, वो इजी भी होता है एक्सप्लेन करना। एंड Right. देन एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था जर्नल एंट्री। मुझसे जर्नल एंट्रीज बहुत सारी पूछी थी, प्रीपेड की पूछ ली, आउटस्टैंडिंग की पूछ Okay. ली, क्योंकि ये ऐसे होते हैं जो तुरंत से ऐसे माइंड में नहीं आते। जैसे अक्रूड की हो गई, वो तुरंत से माइंड में हाँ, नहीं आते हैं। ये प्रोविजन और फॉर डाउटफुल डेट्स की हाँ, बहुत पूछते हैं। प्रोविजन, हाँ। राइट। हाँ। तो जो ये Right. ऐसे वाले ना, मतलब सेल परचेज के नहीं पूछेंगे, बट जो थोड़े से ट्रिकी वाले होते हैं प्रोविजन वगैरह के, वो ऐसा रखना कि तुरंत रेडी हो वो बोलने के लिए। एंड Right. देन कुछ बेसिक टर्म्स पूछते हैं, लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये हम बहुत मतलब ऐसा नहीं होता कि हम बहुत जनरली कम अक्रॉस हो रहे हैं ऐसे वर्ड्स के। तो ये वर्ड्स भी उस क्वेश्चन लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। रिटन रिप्रेजेंटेशन के मीनिंग वो पूछेंगे। देन मटेरियलिटी के बारे में, मतलब लाइक 100% क्वेश्चन होता ही है। वो मैंने जितने लोगों से सुना है या खुद के एक्सपीरियंस बताऊं, वो क्वेश्चन होना ही है। और अगर लाइक आप थोड़ा सा अगर रिसर्च कर लोगे तो, और अगर आप बताओगे कि लाइक हम बुक्स में तो मटेरियलिटी नॉर्मल पढ़ते हैं, और मैंने जहाँ से आर्टिकलशिप करी थी वहां पे एज सच मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के नाम से तो हम नहीं करते थे। बट मैंने Right. जब यहाँ थिंकिंग जिससे ही ली थी, वो स्टैट ऑडिट की भी क्लास ली हुई थी। The class. जी जी। हाँ, और वैसे हाँ। यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे आपको कि हाँ। जो बेसिक टर्म्स होते हैं कि मटेरियलिटी क्या है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है, ओवरऑल मटेरियलिटी क्या है, और ट्रिवियल क्या होता है। इसको अगर आप कर लो, भले आप बिग फोर से आर्टिकलशिप हो या ना हो, बट ये चीज भी डेफिनेशंस क्लियर रखना। देन एक थोड़े ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक कि डेटर है, वो हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं दे रहा, फिर क्या करोगे। मतलब वो बार बार पूछे जाएंगे कि आप जो भी प्रोसीजर बताओगे, वो बोलेंगे कि ये भी नहीं हो पा रहा, क्लाइंट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, फिर आप क्या करोगे। इसको बार बार वो पूछेंगे हाँ। आपको। तो फिर आपको एट द एंड, मैंने तो यही आंसर किया था कि दिस इज लाइक ऑडिट एंड नॉट इन्वेस्टिगेशन, तो हम उतना डिटेल राइट। में नहीं जा सकते हैं। राइट। एंड ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स में भी बार बार पूछते रहेंगे कि ये हाँ, ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी अप्लाई नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा, ये हाँ, भी नहीं हो रहा, तो अब क्या करोगे। हाँ। राइट। और अगर नहीं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है, तो जस्ट सिंपली से नो, क्योंकि आप आर्टिकल के बाद इतना तो हो जाता है। मतलब वो क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक पूछते हैं, ऐसा बहुत एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे। तो अगर बहुत एडवांस जा रहा है, आप उससे बोल दोगे सिंपली कि नहीं पता, तो दैट इज फाइन। राइट। क्योंकि क्योंकि मिक्स रहेंगे क्वेश्चंस। लाइक 80% आपको सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे, 20% या 10% ही ऐसे होंगे जो थोड़े टफ हैं, और वो आप आंसर नहीं भी कर पा रहे हो तो दैट इज फाइन। हाँ। मेन ये है, आप 80% बहुत अच्छे से आंसर करो। और सिंस की ग्लोबल में अगर आपको करना है प्रैक्टिसेस में, इंडियन में भी जरूरी है, बट ग्लोबल प्रैक्टिसेस में आपके कम्युनिकेशन स्किल पे वो बहुत फोकस करेंगे कि, क्योंकि आपको क्लाइंट से ही इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना है। तो वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब वो लाइक 50% आपकी नॉलेज और 50% आपकी कम्युनिकेशन, क्योंकि उस पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। राइट। राइट। एग्जैक्टली। क्या कोई डिलॉयट यूएफआई में आयुषी रिटन टेस्ट या वर्सन टेस्ट हुआ था हाँ, फॉर हाँ, इंग्लिश असिस्टेंट। हाँ, हाँ, एक वर्सन टेस्ट हुआ था, राइट। तो टेक्निकल के ओके। बाद आपका वर्सन टेस्ट होगा। तो उसमें वर्सन टेस्ट ना यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो उसमें ओके। बेसिकली ऐसे रहते हैं कि वो कुछ मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं लाइक वॉइस आ रही है, वो आपको सुनना है और आपको रिपीट करना है। रिपीट करना है, सेंटेंस हाँ, फ्रेमिंग करनी है, उस राइट, टाइप का हाँ, होता है। राइट। हाँ। फिर हमने वो कुछ क्वेश्चंस। हाँ जी, हाँ जी। कुछ या टॉपिक आयुषी। दे देंगे, वो आपको उसको पे ऐसे लिखना होगा कुछ मिनट्स में। तो राइट। सर्टेन वर्ड्स के लिख लेंगे कि लाइक 150 वर्ड्स के इस पे ऐसे लिखो विद इन 5 मिनट, या इस तरीके से। तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं, वो बहुत ही लाइक गेम टाइप में होता है, ऐसा कोई इसमें इशू नहीं होता है। और आपको हाँ। यूट्यूब पे वर्सन टेस्ट के नाम से मिल जाएगा, डेलॉयट में डालना, सिर्फ वर्सन टेस्ट डालना, तो वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं। देन पैराग्राफ जंबल वर्ड्स जो होते हैं ना, कि लाइक जंबल कर देंगे वर्ड्स को, उसको आपको सीक्वेंस में सेंटेंस बनाना होगा। तो ऐसे रहते हैं। बचपन में जो इंग्लिश के पेपर में आते थे क्वेश्चन, वही वाले हो गए। हाँ, फिर एक स्टोरी सुनाते हैं।
तो वो हाँ स्टोरी है और फिर आपको टाइम देंगे, मतलब एक बार वो स्टोरी चलेगी तो उसको ध्यान से सुनना, फिर वो टाइम देंगे 1 या 1.5 मिनट का, उसमें आपको शॉर्ट में वो स्टोरी लिखनी होती है। तो मतलब वो बेसिकली दो चीजें देखेंगे कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, दूसरा ये कि आप जो एक्सेंट होगी ना वो यूएस या यूके वाली एक्सेंट होगी, तो उन्हें वो देखना है कि आप वो एक्सेंट समझ पा रहे हो। तो दो ही उसका मोटिव है, आप अच्छे से लिख पा रहे हो, बोल पा रहे हो, और दूसरा कि उनकी एक्सेंट समझ पा रहे हो। राइट राइट, हमने एंड क्वेश्चंस देन डाले हुए हैं गाइस वर्सन टेस्ट के, हम एक वीडियो भी उसमें अपलोड कर देंगे एज आयुषी इज सेइंग, बिल्कुल उसी तरीके से होता है टेस्ट। फॉर योर रेफरेंस वील अपलोड दैट वीडियो आल्सो। यस आयुषी, यू वर सेइंग समथिंग। इसके बाद वर्सेंट के बाद आपका डायरेक्टर्स राउंड होगा। डायरेक्टर्स ओके। राउंड डेलॉयट में तो मुझसे सिर्फ पूछा था कि कैश की टेस्टिंग आप कैसे करते हो, सिंपल। उसके बाद फिर हम्म। वही मौसम कैसा है और ये सब पे आ जाते हैं। और जीटी में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पूछा था, सीधे मौसम पे आ गए थे, मौसम कैसा है, कहाँ रहते हो, वहाँ की फेमस क्या चीजें। तो डायरेक्टर्स राउंड में मेरे से तो लाइक एक्चुअली डायरेक्टर्स राउंड में नहीं होता है इतना कुछ, अगर आपका वर्सेंट तक पहुंच गए हो तो एक राइट ये है कि आप क्लियर हो चुके हो। बट हाँ, डायरेक्टर्स राउंड फिर भी अच्छे से आप देना। एंड देन वो लास्ट होता है, डायरेक्टर्स राउंड के बाद सिलेक्शन राइट हो जाता राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, अगर आपने मिस कर दी हो तो आई एम रीइटरेटिंग, ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तमन्ना में ने भी हाईलाइट करी, आयुषी ने भी हाईलाइट करी, जहां आपको मौका मिले, चाहे इंडिया से 115 का क्वेश्चन हो, चाहे आपके आर्टिकलशिप से रिलेटेड हो, जहां भी आप इंस्टेंस या एग्जाम्पल से बता पाओ चीज को, जरूर से ट्राई करिए। राइट राइट आयुषी। सो प्रियांशु, प्रियांशु केपीएमजी का सफर कैसा रहा था इंटरव्यू का? क्या क्या uh, पूछा गया, कितनी ग्रिलिंग हुई? लड़कों yeah से थोड़ी ज्यादा ग्रिलिंग भी होती है, मैंने जितना एक्सपीरियंस uh, किया है। तो वी हाँ लाइक टू हियर फ्रॉम यू। या हाँ हुई तो थी। सो लाइक टेक्निकल राउंड बेसिकली मेरा एक एसोसिएट पार्टनर ने लिया था डायरेक्ट। जी। सो ओके, इट वाज डायरेक्टली अ टेक्निकल राउंड। No, so like, coming with the from the process. So basically, once your resume gets shortlisted, you get a call from HR, and वही जो जैसा आयुषी ने बताया, बेसिक क्वेश्चंस वो बेसिकली पूछते हैं जो भी आपने resume में मेंशन किया था, and about गुड। the pay and all they'll discuss, and then they also explain you about the next round in the interview process. So हम्म then the second thing comes is the Vasan test, which is अच्छा। like as IOC explained in detail, like just to check your English reading, writing, and listening ability. And after that, once you are done with that version test, then comes the technical round. So हम्म KPMG में technical round का ये सीन है कि सीनियर एसोसिएट टू विच इज काइंड ऑफ असिस्टेंट मैनेजर से लेके उसके ऊपर तक कोई भी ले सकता है इंटरव्यू। ओके सो लाइक मेरे केस में एसोसिएट पार्टनर ने लिया था ओके। डायरेक्ट। सो हम्म इट हाँ सो जो तो मेरे केस में क्या था कि उन्होंने कुछ भी ऑडिट से रिलेटेड या अकाउंटिंग का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पूछा, लाइक मटेरियलिटी क्या होती है, सैम्पलिंग क्या होती है। इनफैक्ट जो मेरा रेज्यूमे था उसमें जो भी मैंने पॉइंट्स मेंशन कर रखे थे, मेरा 35 to 40 मिनट्स इंटरव्यू सारा उन पॉइंट्स पे ही लिया उन्होंने। हम्म जो भी मैंने चीज़ लिखी थी, फॉर एग्जांपल मैंने एक फिजिकल वेरिफिकेशन पैन इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, तो उसमें क्या क्या रिपोर्ट्स चेक किए मैंने, डिस्क्रिपेंसीज को कैसे आइडेंटिफाई किया, किसको रिपोर्ट किया, क्या क्या रिपोर्ट्स जनरेट हुए उससे। एंड हम्म देन अगेन आई हैव डन इंटरनल ऑडिट। सो जो भी प्रोसेस मैंने स्पेसिफाई किए थे, इस प्रोसेस में आपने क्या क्या स्टार्टिंग टू एंड वो पूछ लिया। और हम्म उसके बाद वही सेम लाइक क्या क्या रिपोर्ट्स आपने चेक करी, कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसी थी तो उसको कैसे किसको रिपोर्ट किया एंड ऑल। सो ये सारी चीज़ें थी। सो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेक्निकल राउंड में कि लाइक यू शुड हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्लीट नॉलेज ऑफ वॉट एवर यू हैव मेंशन इन योर रेज्यूमे। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। And then obviously comes the technical thing related to audit, as Ayushi and Tamanna mentioned, like concepts of materiality, performance materiality, the types of audit risk, the audit assertions at balance sheet level and the profit and loss account level. Then what are the different types of audit opinion? Then they can simply ask you some audit related terms. What is the risk assessment procedure? What is analytical procedure? What is राइट internal control and all? And some question related to watching verification, which is generally related to like PP and cash and debtors or creditors. And if I talk about the accounting related things, so obviously their favorite topic is 115 and 116. Always in 115 also the 5-step model.
And obviously, like as Ayushi and Tamanna said, you should be giving example, like you should be quoting an example along with uh, the content which you're telling. So, and then and related to PP, they can ask you like difference between depreciation and amortization, which looks like simple, but you get confused when you are in the interview. So yeah, so these were the things. Right. Got it. ग्रेट प्रियांशु। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गाइस, आपके रिज्यूमे पे आपको ग्रिल Yeah, करा जा सकता है, उसका एक एक शब्द आपको पता होना चाहिए जो आपने correct. लिखा है, एक एक एक्सपीरियंस आपको पता होना चाहिए, एंड यू शुड हैव अ गुड स्टोरी लाइन अराउंड एवरीथिंग विच यू हैव रिटन, कि कैसे काम किया था, क्या काम किया था, एंड ट्राई टू हाईलाइट द गुड पार्ट, जो भी ऑब्जर्वेशन आपने फाइंड आउट करी हो अपनी आर्टिकलशिप में, या जो भी काम आपने करा हो। एंड सेकेंडली, एज हाईलाइटेड बाय एवरीवन, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे Hmm. ऑडिट के अराउंड, प्रोसीजर्स के अराउंड, मटीरियलिटी के अराउंड, एंड जो इंटरव्यू गाइड बुक है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल इन द फ्री इंटरव्यू रिसोर्सेज कोर्स, उसको जरूर से रेफर करिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए, एंड टेक्निकल्स के लिए साथ के साथ प्रिपेयर करिए। ग्रेट गाइस, ग्रेट। सो प्रियांशु, एक चीज और बताओ, Yeah, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन yeah. जिसके लिए सब लोग बिग फोर्स के ग्लोबल आर्म्स की तरफ जाना चाहते हैं, वो Okay, है कि साहब कभी फ्यूचर में हमको अब्रॉड जाने की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्या? okay. सेकॉन्डमेंट कुछ सुना हुआ है कि भाई 2 साल काम करेंगे फिर शायद 6 महीने की अपॉर्चुनिटी बाहर घूमने की मिलेगी, तो उस पे क्या विचार है, क्या पॉलिसीज हैं, एंड हाउ वी कैन So, गेट दोस अपॉर्चुनिटीज, राइट? so based on my understanding till now, what हम्म। I have came to know is like मैनेजर एंड अबव लेवल के लिए ये चीज है कि दे गेट अ चांस बिकॉज इन ग्लोबल इट बिकम्स easier to move to some other country also because राइट। if you and obviously since you're dealing with IFRS and US GAAP which is mostly followed by most of the countries all around, so it becomes easier to just shift to other country also. So currently I think it is for manager and above, not below that. So ओके। yeah, yeah. राइट। ग्रेट। एंड कौन सी कंट्रीज का अभी काम मोस्टली आता है? इज इट Okay. यूएस, यूके मोस्टली, और So अदर in कंट्रीज? so in KGDC, so it's mostly US. I would ओके। say 85%, and then ओके। 15% is Canada audit. ओके। ओके। So yeah, गॉट I इट। am aware of this two audit which is currently a part of KGDC, US audit and the Canada audit. Yeah. ओके। गॉट इट। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। राइट। कमिंग ऑन टू आयुषी, आयुषी, आपका क्या एक्सपीरियंस है इन डिलॉयट एंड इन जीटी की सेकॉन्डमेंट अपॉर्चुनिटीज या फिर ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज कब मिल पाती हैं, किनको मिल पाती हैं? एंड अभी जो काम रहता है दैट इज मोस्टली अ बैक एंड वर्क या फिर फ्रंट एंड भी रहता है जिसमें वी आर डायरेक्टली डीलिंग विद द क्लाइंट्स? किस टाइप का नहीं, काम? राइट। सो जीटी में तो मेरा भी लाइक आई डायरेक्टली वर्क विद ऑनशोर। ओके। हाँ, डिलॉयट में आप ऑफशोर के साथ काम करते हो, ओके। बट क्लाइंट से आप करते हो कनेक्ट, बट इनिशियली जब आप जाओगे तो लाइक असिस्टेंट लेवल पे हमारी हायरिंग होती है, तो असिस्टेंट लेवल पे वो हमेशा लाइक कभी भी डायरेक्ट कॉल नहीं कराएंगे क्लाइंट से। आपके साथ आपका सीनियर या मैनेजर रहेगा ही क्लाइंट पे, बट लाइक डिपेंड करता है एंटिटी पे। लाइक अभी जीटी में अगर हम देखें तो उसमें हम डायरेक्ट ही क्लाइंट पे जाते हैं, लाइक डे वन से ही हमें सब कुछ काम खुद से करना है, एवरीथिंग। आप क्लाइंट्स को ही सीधे कनेक्ट कर रहे हो, उनसे ही आप सारे क्वेरीज कर रहे हो, तो वो पूरा ही ओके। आप पे लाइक फेथ रखते हैं। एंड एंड दैट टू दैट क्लाइंट इज अ फॉरेनर, तो उनको या अपनी बात पूरा समझाना इन आवर हाँ, एक्सेंट, सो हाँ, इट्स कम्युनिकेशन टफ। स्किल्स हैव टू बी वेरी गुड, राइट? या एंड माइन इज यूके। यूके का एक्सेंट इज मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हाँ, यूएस तो हम सब वेब सीरीज से समझ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। बट और या ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज के बारे में क्या ट्रैवल, कहना है आपका? जी। हाँ, तो लाइक एज प्रियांशु सेड, वही है, आप वहाँ भी सेम है, मैनेजर लेवल पे आप जाते हो। प्लस एक हम्म। ऑप्शन होता है कि सीपीए जिन्होंने किया होता है उन्हें थोड़ा और इजिली अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो लाइक ओके। वहाँ पे और थे मेरे नोन में कलीग्स जो जिन्होंने सीए भी किया था, साथ में वो सीपीए कर रहे थे, मतलब ओके। अब सीए के बाद ओके। वो सीपीए भी कर रहे थे जॉब के साथ। तो हम्म। उसके बाद थोड़ा इजी हो जाता है अपॉर्चुनिटी मिलना। बट ये है कि जितने भी मैं जानती हूँ वो सभी लाइक मैनेजर लेवल के बाद ही कहते हैं। एंड इन हम्म। जीटी ऑल्सो यहाँ पे ऐसा है कि आप 3 साल में आप मैनेजर बनते हो, एंड देन उसके बाद आपको 2 साल के सेकंडमेंट पे भेजते हैं अगर अच्छी परफॉर्मेंस है तो।
ओके, ग्रेट या ग्रेट। सो एंड इनिशियली तो नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी, आपको 1-2 साल तो लगते हैं जाने के लिए। ओके, तो अराउंड ऑन एन एवरेज 2 to 3 years वी 2 कैन to 3, अज्यूम कि 2 से 3 या साल के बाद एक राइट, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या एंड कौन सी कंट्रीज का मोस्टली काम रहता है? इज इट यूएस प्राइमरीली? आई हैव सीन मोर फॉर यूके, ओके, बिकॉज मेरे डेलॉयट एंड जीटी दोनों में यूके ही था यूके टीम, था। या ओके, तो राइट रीजन यूके था, तो बट यूएस में भी होते हैं अपॉर्चुनिटीज राइट ऑब्वियसली, राइट या। राइट। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, या हाँ जी। तमन्ना, ईवाई में क्या हाल है अपॉर्चुनिटीज का रिलेटेड टू ट्रैवल, एंड किस टाइप का काम है बेसिकली? Yeah, so Archit sir, EY may like we have from the travel perspective, it gives a very good opportunity. Okay, why? Because though initially तो obviously you won't get that opportunity because they will also have to assess from the initial perspective, because working with directly with going to the onshore site and like with client, obviously they will first assess you whether you are up to that capability. So like I think rarely I have seen on a senior 3 level, but once you are onto the assistant manager, then you get opportunity to be go into that go into like uh, different country for your rotation. We call it here the rotation, where you get the opportunity either for short term, that is for 6 months, or long term, that is for 2 years. But guys, that depend on your overall performance, definitely, because they will first assess you that whether you have the capability that you can directly work with the client or not, depending on what the feedback, the rating, the overall your connect with the onshore. Okay, but yes, opportunity is there, is here. क्या Like ऑफिस there, if पॉलिटिक्स का भी रोल रहता है तमन्ना इसमें, कि जिनकी इक्वेशंस अच्छी है उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी? ये देखो हमारी अच्छे से क्लोज सभा है, तो ऑफिस वी कैन बी वेरी फ्रैंक हियर। अच्छे से ऑफिस पॉलिटिक्स तो देखिए, लाइक अगर लाइक ऑब्वियसली दे विल असेस यू ऑन द फीडबैक। अगर वो काम आप काम कर रहे हो, वो दिख रहा है आपके मैनेजर्स को, जो आपके रिव्यूअर्स हैं मैनेजर्स को, वो दिख रहा है, दे नो हाँ कि जैसे मेरा और आपका कनेक्ट था, या जो भी आपके साथ काम की, यू नो कि कौन क्या कर रहा है ना। सो इफ दैट पर्सन इज अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ आप चीजें सही कर रहे हो, यू हैव दैट कैपेबिलिटी। ऑफिस पॉलिटिक्स भी होता है बट उस लेवल का नहीं, बट आपका काम दिख रहा है, देन फाइन, बिकॉज ऑब्वियसली एक विजिबिलिटी चाहिए ही चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्कुल बट ठीक है। यहाँ अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है यहाँ हम्म पे, लाइक मोस्टली ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट कंट्री, बिकॉज आई वर्क इन द यूएस हम्म रीजन आई हैव। सो हम्म कंट्री का हमारा लाइक इन ईवाई ग्लोबल वी हैव different country. Mostly it is US, UK are also there, Canada हम्म are also there. Then today I have and somehow got to know that even Israel and Japan are also there, but the team is very limited. Majority of the work we get is from the US team. Then UK we also have. So majority are from the US, UK, and I'll handle the US part. If I talk and also guys, if I talk about how the work is done from the हम्म client interaction perspective, first obviously you will have to connect with the onshore only, because you will be kind of assisting them in their audit, like they will be guiding you like this is how the client data, this is what we need to do on the audit, because there is a certain limitation in aspect of areas, like they will give you particular areas to audit, not the entire books of account. Okay, and depending on that they will judge you whether you have you are confident enough that you can go on to the call with the client to, if you are leading a complete area on your own, for example a cash account, if you are leading the entire cash account, then they give you chance, not initially obviously, after some time they give you chance that you can lead a call with client, you can send them emails asking them for query, because I have done it personally on few of my account, that I have directly get on call with the client. Obviously someone will be there, like you cannot alone go with the client directly, someone from the onshore team, either manager, senior manager, will be there to help you, like to basically kind of as an intermediary. Okay, so हम्म these, but yes, like opportunity are there in a like from the client interaction perspective also, and from the rotation perspective also. So yes, this is good here in EY. ग्रेट 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 ग्रेट। तो मेरे पास दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आप सबके लिए। तमन्ना, आपसे शुरू करते हैं। नंबर वन जी है, yes.
नंबर वन है वर्क लाइफ बैलेंस। बताओ साहब, वर्क लाइफ बैलेंस क्या रहेगा? देखो हमारे टाइम पे तो खाली वर्क वर्क बैलेंस था, ठीक है, दिन का रात दिन का काम बैलेंस कर लो, रात का काम बैलेंस कर लो, लाइफ कुछ नहीं होती थी। तो मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि अपने करियर के पहले 5 साल ना वर्क लाइफ बैलेंस जैसी कोई चीज होती है वो भूल जाओ। वर्क वर्क बैलेंस करो कि दिन का कैसे करना है और रात का कैसे करना है। कैसा माहौल है, हाउ इज द वर्क एनवायरनमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस कितना है आजकल इन द जी ग्लोबल? यस सर। जी। सो हम्म गाइस देखो, इफ आई कंपेयर अबाउट विथ इंडिया प्रैक्टिस, ओके, तो इंडिया प्रैक्टिस के कंपैरिजन में वर्क लाइफ लाइक इंडिया बिग फोर, इफ आई टॉक अबाउट लाइक ईवाई, पीडब्ल्यूसी, डिलॉयट, तो ईवाई की अगर मैं बात करूँ, यस वर्क लाइफ बैलेंस आर देयर, ठीक है, कि मतलब आपको 24/7 नहीं करना पड़ता, लाइक जब ये इंडिया प्रैक्टिस ग्रिल यू की करना है रात भर एंड ऑल दैट, यहाँ पे क्या मेरे को होता है। प्रियांशु की स्माइल में कुछ दिख रहा है। हाँ जी तमन्ना, तो प्लीज गो अहेड। सो हाँ। सो डेफिनेटली, बट यस वर्क रहता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चिल आउट, बिकॉज पर्सनली यूएस में तो डेफिनेटली बहुत वर्क रहता है। हम्म वर्क इन द सेंस कि दो टाइम फेज ऐसा आता है जहाँ पे डेफिनेटली यू आर अंडर लिटिल बिट ऑफ प्रेशर। एक टाइम ऐसा होता है जब क्लाइंट की इंटरिम फाइलिंग्स होती है, दैट इज अराउंड लाइक इंटरिम डेट इज लाइक 30th September, तो दैट इज ना अक्टूबर नवंबर पीरियड, जब हम उनकी ऑडिट वगैरह क्लोज करते हैं फॉर इंटरिम फेज, वहाँ उनका सबसे बिजी पीरियड रहता है। बट उसके भी ज्यादा बिजी पीरियड आता है जब उनकी दिसंबर ईयर एंड फाइलिंग होती है, हम्म। ओके। तो वहां पे जनवरी टू मार्च विल बी द बिजिएस्ट पीरियड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ थोड़ा मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट थोड़ा, बट हाँ एक वर्क लाइफ बैलेंस रहता है कि काम इजीली मैनेज हो जाता है, व्हाट तो वो कोई मतलब दिक्कत नहीं व्हाट रहती है। व्हाट अ डे लुक्स लाइक, मतलब हमारा वीकडेज पे आवर स्ट्रेच होते हैं, वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ता है? नहीं अच्छे से वीकेंड पे काम सब बिजी सीजन में ही करना पड़ता है। द आई टॉक अबाउट इंटरिम एंड ईयर एंड, वहां पे भी बिजी सीजन तभी, सॉरी वीकेंड तभी काम होगा जब अर्जेंटली कोई डिलीवरेबल्स जानी है, डेडलाइन ऐसी है, लाइक लॉट ऑफ वर्क्स आर देयर विच इज पेंडिंग विच इज नीड टू बी कंप्लीटेड, वहां पे वीकेंड पे बैठना पड़ेगा। थोड़ा सा एक्सटेंडेड आवर्स होगा, 1 or 2 आवर्स ड्यूरिंग वीकडे, बट अपार्ट फ्रॉम द बिजी सीजन ऐसा नहीं है कि आप वीकेंड पे काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा बैठ के काम कर रहे हो, वो चीजें नहीं है। तो देयर इज अ बेनिफिट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे। गॉट इट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बट आयुषी डेफिनेटली गाइस ये मत सोचना कि काम नहीं है, बट बिकॉज काम है, एंड डिपेंडिंग ऑल्सो विच टीम यू गेट इनटू, दैट आल्सो मैटर्स कि आप किस कैसा काम करेंगे, किस लेवल का है। तो वो चीज ना डिफर करती है, लाइक देयर इज नॉट अ फिक्स आंसर, दैट डिपेंड्स लाइक विच टीम यू आर गेटिंग इनटू। मेरे को वो मीम याद आ रहा है, वो आता है ना, ये दुख का है खत्म नहीं होता भाई, बचपन से सुन रहे हैं कि भाई 10th कर लो फिर आराम ही आराम है, 12th कर लो आराम ही वो आराम है, नहीं होगा। ये भी कर लिया उसके बाद भी कोई आराम नहीं है गाइस, लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल, राइट? मूविंग टू आयुषी। आयुषी, आपके पास 2 फॉर्म्स का एक्सपीरियंस है, क्या बताना चाहेंगे वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में? या तो वर्क लाइफ बैलेंस मेरे तक तो जितना मैंने देखा है काफी अच्छा होता है। हम्म क्योंकि लाइक मैंने डिलॉयट में 2 क्लाइंट पे काम किया था। तो फर्स्ट क्लाइंट का थोड़ा सा जैसा तमन्ना ने बोला कि टीम पे बहुत डिपेंड करता है, तो मेरी जो फर्स्ट टीम थी उसमें मोस्टली लड़के थे And लड़के थोड़े ऐसे होते हैं कि ठीक है चिल चिल रहते हैं, करेंगे करेंगे। सुन लो तो लड़कों, मेरा सुन लो, सुन लो। तो तो जितने लाइक मैं जितने मंथ्स के लिए वहां पे प्लॉटेड थी, तो मेरा थोड़ा चिल में निकला था। चिल मतलब ओके। ये नहीं होता कि आपको 3-4 घंटे काम करना है, स्टिल आपको 7-8 आवर्स तो लगते ही है, बट ये है कि 7-8 आवर्स से आगे नहीं जाएगा आपका, और उस 7-8 आवर्स में भी बहुत प्रेशर नहीं रहेगा। लाइक हम्म नॉर्मल वर्क मिल रहा है आपको, आप विद इन टाइम कंप्लीट कर पा रहे हो। एंड ऑल्सो हम्म इनिशियली जब आप जाते हो तो डेलॉयट में तो लर्निंग कर्व का बहुत बेनिफिट देते हैं। वो बिल्कुल आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि अभी आए हो तो जो 4 साल से काम कर रहे हो उनके स्पीड से काम करो। वो आपको पूरा इतना समझते हैं, और अगर आप जो भी आप उसमें क्लियरली बोल दो कि मुझे टाइम लग रहा है, तो वो उस चीज हम्म को अंडरस्टैंड करते हैं। हम्म तो इनिशियली आपको उतना प्रेशर नहीं आएगा। एंड देन जो मेरी सेकेंड वाली क्लाइंट था, तो उसमें हम्म सारी लड़कियां थी। तो उन लड़कियों का ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम करते रहो, तो उसमें हमारा ऐसा चलता था कि हम उसमें मेरी लंबी प्लॉटिंग थी, तो उसमें मैंने जितना काम किया थ्रू आउट मतलब पीरियड, मैंने एक कांस्टेंट लेवल ऑफ वर्क ही किया है। ये नहीं किया कि लाइक ऐसा नहीं था कि एंड में जाके करेंगे, तो वो कॉन्स्टेंटली एक लेवल पे हम कर रहे थे, चाहे वो बिल्कुल स्टार्टिंग का ही था,
तो भी हम 7-8 आवर्स वर्क कर रहे थे और आराम से कर रहे थे। तो वो ऐसा मुझे बताते थे कि एंड में जाते जाते भी हमारे पास उतना ही प्रेशर रहता है, बहुत प्रेशर नहीं आता। तो वो अच्छा। ऑब्वियसली टीम पे डिपेंड करता है। हम्म। बट ओके। उसमें भी बहुत वैरायटी के लोग आपको मिलेंगे। लाइक एक उसमें 2-3 लोग ऐसे थे। लाइक हमारा वर्किंग आवर स्टार्ट होता है 11 के अराउंड। डिपेंड करता है कि ओके। आपको यूएस मिल रहा है, यूके मिल रहा है। तो हम्म। उसमें कुछ ऐसे थे जो बहुत बार ऐसा करते थे कि उन्हें अगर काम पता है तो वो सुबह उठ के 6 बजे से 12 बजे तक में काम खत्म कर देते थे, और फिर वो अच्छा। पूरे देर फ्री है। मतलब ऑब्वियसली जिस जिस टाइम आपको पता है कि आपके पास काम क्या है, आपको क्या करना है, उस दिन आप ऐसे कर सकते हो। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत ये बार तो तो अच्छी आप। चीज है आयुषी, मतलब मेरे को ये पॉजिटिव दिख रहा है कि अगर ग्लोबल प्रैक्टिसेस में दे आर जस्ट केयरिंग अबाउट द वर्क, क्योंकि हाँ, इंडिया में तो फिर भी इंडियन प्रैक्टिसेस में ये दिक्कत है कि जब तक मैनेजर या बॉसेस बैठे हो तब तक आपको बैठना हाँ, पड़ेगा, अगर एग्जैक्ट। काम काम नहीं भी है तो भी आपको बैठना है, टीम बैठी हुई है तो बैठना है। तो हाँ, अगर दिस कल्चर इज नॉट देयर इन द ग्लोबल नहीं प्रैक्टिस, दिस इज अ बिल्कुल। गुड साइन। हाँ, बिल्कुल नहीं है। इवन मतलब डिलॉयट में तो ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि आप हम्म। इंडिया वालों के साथ ही काम कर रहे हो, तो वो तो साथ साथ में सब निकल जाते हैं। अभी मैं जीटी में कर रही हूँ, तो यूके वाले मेरे से आगे तक काम करते हैं, फिर भी मुझे मेरे टाइम पे मैसेज आ जाता है। अगर मैं लेट करती हूँ तो मैसेज आ जाता है कि यू कैन लॉग ऑफ फॉर टुडे। ऐसा वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप एक्सटेंड करो, क्योंकि हम लॉग इन भी जल्दी करते हैं। अरे ब्रिटिशर्स तुम क्यों गए यहाँ से? ऐसी फीलिंग आती है ना ऐसे जगहों पे काम करके। हम्म। तो वर्क लाइफ चलो। बैलेंस सही रहता है। हाँ। मतलब बस हाँ। थोड़ा सा टीम पे डिपेंड करेगा और आप पे है कि। बट आपको लर्निंग कर्व का भी बेनिफिट मिलेगा। स्टार्टिंग में आपसे बहुत एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा स्लो भी करोगे तो चलेगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो ग्रेट। प्रियांशु के पास आते हैं। प्रियांशु, मेरे yeah, को आपसे जानना है, ठीक है, क्योंकि लड़कों का अलग एक्सपीरियंस होता है, एज आई मेंशन्ड। yeah, yeah. जैसे आयुषी ने बताया ना कि एक सटल लैंग्वेज में आयुषी ने ये बोल दिया कि फीमेल मैनेजर इज नॉट गुड। मैं उसके आगे नहीं बोलूंगा कुछ। ठीक है ना, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन नहीं औरत ही औरत की दुश्मन, हर्ष गुजराल बोलता है ना। तो मैंने नहीं कुछ नहीं बोला है। नहीं नहीं, मेरी हाँ जी, मैनेजर जोक्स भी एक अपार्ट। फीमेल हाँ ही जी है, तो मैं प्रियांशु। भी कुछ नहीं बोलना चाहूंगा इस पॉइंट पे। बट सो लाइक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत सही है। मीन्स लाइक टिल नाउ अभी तक मुझे किसी भी सैटरडे या संडे काम नहीं करना पड़ा है। ओके। एंड बट मैं अगर कोर ऑडिट की बात करूं, क्योंकि मेरा टीम डिफरेंट है, तो हम्म। उनका जैन टू मार्च बिजी सीजन होता है। सो जहाँ हम्म। की वो सैटरडे लाइक 6 डे वर्किंग डेज होते हैं उनके, हम्म। इंक्लूडिंग सैटरडे। एंड वर्किंग आवर्स इज लाइक 11 hours काइंड ऑफ पर डे। एंड ऐसा रहता है। अदरवाइज जनरली इट्स 40 hours वीक के उनको शो करने हैं। एंड मेरे लिए भी इट्स लाइक ऑफिशियल टाइम वैसे 8:30 to 5:30 है हमारा। ओके। सो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। बट हमारे टीम में फ्लेक्सिबिलिटी है। लाइक मैं चाहूँ 10 बजे भी लॉग इन कर सकता हूँ, 11 बजे भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि उनको वीक में 40 to 45 hours मेरे दिखने चाहिए। एंड जो हम्म। भी काम मुझे असाइन हुआ है मैं टाइम पे कंप्लीट करके दे दूँ। बस ये एक्सपेक्टेशन है उनकी। सो या एंड वेर एज लाइक जैसा कोड ऑडिट के लिए उनका जैन टू मार्च रहता है। एंड अदरवाइज 8 hours इज लाइक उनको मेंटेन करना है। सो ओके। ये सीन है। राइट राइट राइट। राइट, सो प्रियांशु लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, सबसे इम्पोर्टेंट, कि अल्टीमेटली ग्रोथ कैसी रहती है, हायरार्की कैसी रहती है, और सैलरीज की अगर आप थोड़ा रेंज बता पाए कि भाई क्या सैलरीज की डिफरेंट डिफरेंट हायरार्की पे रेंज हो सकती है, एंड हाउ वी ओके कैन एक्सपेक्ट आवर करियर बाय स्टेइंग इन अ बिग फोर और अ बिग सिक्स फॉर अबाउट नेक्स्ट 25-30 years. तो व्हाट कैन बी द हायरार्की स्ट्रक्चर? ओके। सो सो हायरार्की स्ट्रक्चर जो अभी केपीएमजी ग्लोबल में जीडीसी में है, इट्स लाइक इफ you are not CA qualified, like you just did MCOM or MBA, then they take you at associate 1 level. And ओके। if you are qualified, then they directly take you to associate 2 level. ओके। And then comes senior associate 1, then SA 2, senior associate 2, which is equivalent to assistant manager. And then ओके। comes manager, then there is associate director, director, and ओके। associate partner. ओके। So जनरली जो एसोसिएट लेवल पे ज्वाइन करते हैं, 2 साल का पीरियड होता है टू कम एट द A2 लेवल। हम्म। एंड सेम A2 से SA 1 जाने के लिए इट डिफर्स, लाइक 2 साल भी
जनरली 2 साल, अदरवाइज 3 साल, किसी किसी केस में, रेयर केस में 4 साल भी। 4 साल भी होते हाँ, हैं, वो राइट। डिपेंड करता है आप कैसा परफॉर्म करते हो हर जगह पे। सो अदरवाइज 2 इयर्स का पीरियड हम एक जनरल ले सकते हैं। एंड सो ये बेसिकली है। एंड पे स्केल की मैं बात करूँ तो A1 लेवल पे इट्स लाइक आई कैन टेल 6, एवरेज 6 LPM ले सकते हैं। एंड राइट। डायरेक्ट A2 लेवल पे अगर कोई ज्वाइन करता है, देन इंक्लूडिंग बोनसेस एंड ऑल, आई एम टेलिंग, आई थिंक one can expect 11 plus. राइट। Yeah, राइट। 11 plus they can expect. And so yeah, that is there. I don't know about the manager and अदर above लेवल, level, but राइट yeah, राइट 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 राइट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो 6 to 7 levels of hierarchy are there, आई थिंक इंडियन बिग फोर में भी यही रहता है। yeah, एंड I guess. राइट राइट। आयुषी की बात चलते हैं। आयुषी, कैसी हायरार्की है डिलॉइट में एंड जीटी में? आई गेस 6 to 7 लेवल्स ही होंगे, नाम अलग हो सकते हैं, राइट। बट या राइट। तो हायरार्की का जो लेवल है वो तो सेम है, बट हाँ जी। पे स्केल में आई गेस बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्योंकि राइट। डेलॉयट में आप मतलब मैं डेलॉयट और जीटी दोनों का बताऊं तो बाकी जगहों पे ने देखा है कि परफॉर्मेंस बेस्ड आपका प्रमोशन होता है, बट डेलॉयट में ऐसा नहीं है। अगर आप हो उसके साथ तो आपका हर साल प्रमोशन होता है। सो फर्स्ट ओके। अगर आप, या तो अच्छा। हाँ, और लाइक आपकी ज्वाइनिंग पे 10.5 था मेरा, अभी शायद हम्म। और 11 हो गया होगा या 10.5 तो हो गई। हाँ तो आप हाँ अगर हाँ। आर्टिकलशिप बिग फोर से हो रखी होती है तो डिलॉयट हम्म। में आप सीधे, इट्स लाइक ASA 1 ASA 2 एंड देन सीनियर। तो हम्म। सो अगर डिलॉयट अगर बिग फोर से आपकी आर्टिकलशिप हो रखी है तो आप सीधे ASA 2 पे हायर होते हो, एंड हम्म। उसका फिर 12 लाख होता है। राइट। 12 और और ये भी शायद 12.5, एक्सक्लूडिंग बोनस होता है, आई थिंक। या एक्सक्लूडिंग बोनस, राइट। राइट तो राइट दिस इज योर फिक्स्ड, लाइक फिक्स सैलरी। तो राइट राइट। और अगर आप, इसीलिए डिलॉइट डिलॉइट सबकी फर्स्ट या प्रेफरेंस आ रही है, अब समझ आई ये, कहानी। हाँ, और अगर कहीं लाइक मीडियोकर या स्मॉल फर्म से किया हुआ है, इवन अगर जीटी हम्म। से भी किया हुआ है तो भी आपको ऐसे 2 पे ही लेते हैं। ओके। ओके। बिग फाइव फर्म्स तक यही है कि हाँ। ऐसे 2 पे होंगे। हम्म। अगर कहीं और से हम्म। किया है तो आपको ऐसे 1 पे लेंगे, बट नेक्स्ट ईयर आपकी परफॉर्मेंस पे नहीं डिपेंड करेगा। परफॉर्मेंस हम्म। में मे भी जॉब पे डिपेंड करता हो या बोनस पे डिपेंड करता हो, बट प्रमोशन हम्म। डिपेंड नहीं करता। तो फिर आप ऐसे 2 होते हो 1 साल में, और फिर सैलरी ओके। भी वही अगेन 20% बढ़ जाती है। एंड देन आई गेस 20% भी हर जगह का नहीं होगा, डेलॉयट का ही आई हम्म। गेस 20% इज वेरी हाई। एंड राइट। एंड देन अगर परफॉर्मेंस बेस्ड उस पे आपका ये होता है कि अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस की है तो आप सीधे ऐसे 1 से सीनियर प्रमोट हो जाते हो। उसको ओके। एक्सेलरेटेड प्रमोशन कहते हैं। तो अगेन वहाँ का जो एक्सेलरेटेड प्रमोशन का एक्सपेक्टेशन है आई गेस वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, और जीटी में जैसा मैंने देखा है कि यहाँ पे तो अगर आप उतना परफॉर्म करोगे तो आपका नॉर्मल प्रमोशन होगा। एक्सेलरेटेड प्रमोशन के लिए तो बहुत बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस चाहिए उन्हें। तो ओके। हम्म। हाँ, हम्म। और डिलॉयट के बहुत ओके। से फायदे हैं, आप बोलो तो मैं अभी बताती हूँ और कौन से पर्क्स है जो डिलॉइट में है? जैसे लीव पॉलिसी बहुत अच्छी है, लाइक अच्छा। जीटी में तो लीव के लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है करने में। ये सब ओके। पहले नहीं पता होता, बट बाद में जाके आपको थोड़े इश्यूज आते हैं। तो हाँ। वहां पे लाइक ओके। हमें जीटी में एडवांस में ही हमें अपनी प्लान लीव्स बतानी होती है कि आप साल अच्छा। में कब कब छुट्टी लोगे। इनमें से तो जितनों ने जीटी में अप्लाई किया है ना, अभी आज ही सर्कुलेट करिए अपने अपॉर्चुनिटी, सबने विड्रॉ करनी शुरू कर दिया एप्लीकेशन। नहीं, बट लाइक हाँ। जीटी के भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स है, वो मैं बताऊंगी। हम्म। मुझे जीटी में पर्सनली वर्क लाइफ बैलेंस डेलॉयट से भी बेटर लगा। यहाँ पे वो ओके। बिल्कुल अगर 8 आवर्स है तो 8 आवर्स से एक्सटेंड नहीं कराते हैं। मतलब अनटिल एंड अनलेस के आपकी बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, आप काम बिल्कुल नहीं करके दे रहे हो, हम्म। अदरवाइज वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, एडिशनल रिसोर्सेज रख लेंगे, बट आपसे एक्स्ट्रा वर्क नहीं कराते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स नहीं लगवाते हैं। 8 से वो 9 ही होगा मैक्सिमम, बट उससे ज्यादा नहीं होगा, तो ये बहुत राइट। अच्छा है। लीव के लिए थोड़ा ये होता है कि थोड़ी प्रॉब्लम है, जीटी में लीव लेने के लिए थोड़ा सा इशू होता है, बट डिलॉयट में इट्स वेरी इजी, आप बस अपलोड करते हो और मैनेजर भी अप्रूव कर देते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वहाँ पे। देन अगेन प्रमोशन एंड सैलरी तो ऑब्वियसली डिलॉयट की बहुत अच्छी है। अदर पर्क्स हम्म। भी वो बहुत अच्छा देते हैं। लाइक एक तो वहाँ पे आपका 2 डेज लाइक हाइब्रिड मोड चलता है। हम्म। तो लाइक यंग एज में कोई नहीं चाहता कि बिल्कुल ही वर्क फ्रॉम होम हो, और कोई ये राइट। भी नहीं चाहता कि रोज ही वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, तो वो हाइब्रिड आई गेस सबसे अच्छा होता है।
राइट। तो एक वो है। जीटी में हमारा लाइक कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम है। देन ओके। जब कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम होता है तो आप फिर किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते, कोई भी इवेंट्स लाइक बहुत रेयरली इवेंट्स होते हैं। हम्म। और डिलॉयट में आपके बहुत इवेंट्स होंगे, बहुत सारे इवेंट्स होते रहेंगे, कभी भी लाइक कुछ भी हुआ तो छोटे मोटे इवेंट्स वो करते ही रहते हैं, फेस्ट वगैरह भी उसका होता रहता है। एंड राइट। देन बाकी तो सेम है, बट जीटी में ये है आपको अच्छा मिलेगा कि वर्किंग लाइफ थोड़ी ज्यादा अच्छी मिलेगी जीटी में। एंड पे स्केल भी डिलॉयट के इक्वल है जीटी का। ओके। ओके। हम्म। ग्रेट 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 ग्रेट। मेरे को लग रहा है कि बाकियों का तो माइंड चेंज हुआ ही हुआ है, प्रियांश और तमन्ना भी डिलॉयट की तरफ देखने लग गए थोड़ा थोड़ा। बहुत ही बढ़िया। चलो, मेरा भी फर्स्ट लव तो डिलॉयट ही है भाई, हमने भी करियर वहीं से शुरू किया था, तो यस द पॉलिसीज आर गुड। बट अल्टीमेटली देखो, काम चारों के पास है और सिमिलर है, कहीं पे कुछ फायदा है, कहीं पे कोई फायदा है, कहीं पे कोई नुकसान है। बट ऑल फोर आर इक्विवेलेंट, ऑल फाइव आर इक्विवेलेंट इनफैक्ट। जीटी भी बराबर है, तो जहां पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है आपको जाना है। और अगर आपके लिए लोकेशन वाइज अगर कोई प्रेफरेंस है तो आपको उसकी भी प्रायोरिटी देनी है। तो अगर आपको आपकी लोकेशन पे कोई भी बिग फाइव मिल रही है, जस्ट गो फॉर इट। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आपने एक जगह से करियर शुरू किया, जैसे अभी आयुषी ने बताया कि शी शिफ्टेड फ्रॉम डिलॉयट टू जीटी, तो आप इजीली अगर एक ब्रांड नेम आपके पास अटैच हो जाता है, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, यू कैन इजीली स्विच एनीवेयर। तो एक बार करियर आपको शुरू करना है अच्छी जगहों से, उसके बाद आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तमन्ना, कमिंग टू यू, कैसी हायरार्कीज हैं, कैसे पैकेजेस हैं? Yes, Archita. So hierarchy is almost like same as other big four guys, but यहाँ पे क्या होता है कि जैसे स्टाफ वन से आपकी स्टार्टिंग होती है। स्टाफ वन दैट डिपेंड, अगर आप ग्रेजुएट हो एम कॉम बी कॉम, सो यू गेट स्टार्टेड फ्रॉम स्टाफ वन। बट एंड ओके। यहाँ पे ऐसा होता है कि स्टाफ वन दे आर लाइक प्रोग्रेशन एंड प्रमोशन का यहाँ पे सिस्टम है। आई थिंक बाकी बिग फोर में भी यही चीज है कि हम्म। स्टाफ वन देन दे प्रोग्रेस नेक्स्ट ईयर टू स्टाफ टू देन स्टाफ थ्री। तो 3 years आपका हम्म। लाइक फॉर द स्टाफ रोल, देन देर आर 3 years फॉर द सीनियर रोल। सीनियर वन एंड सीनियर ओके। टू के लिए देर आर लाइक 2 years. Okay. ओके। CA qualified generally, I think they either join as a staff three, but most of them they join as senior one. Okay, जहाँ पे उनका reviewer वाला रोल रहता है कि they review the work of the staff capacity people. ठीक है, then राइट। आपका senior three, like after completing senior two second year, then you get promoted to assistant manager, and then वहाँ होता है आपका AM1 AM2, like two years you serve as a AM. एएम के बाद आपका मैनेजर प्रमोशन, जो कि राइट। जहाँ पे यू हैव टू सर्व लाइक 3 years ऑफ मैनेजर पोजीशन, एंड पोस्ट द 3 years ऑफ मैनेजर पोजीशन देन यू हम्म। गेट promoted to senior manager. Then we have ओके। like ED, then partner, and one more thing guys कि अगर मैं इजी लेवल की बोलूँ, तो जहां तक मुझे लगता है स्टाफ टू सीनियर और सीनियर टू असिस्टेंट मैनेजर थोड़ा सा इजी रहता है। बट जब हम्म। असिस्टेंट मैनेजर टू मैनेजर की बात आती है या हम्म। मैनेजर टू सीनियर मैनेजर, तो वहां पे टफ हो जाता है कंपटीशन, क्योंकि वहां पे आपको परफॉर्मेंस लेवल एंड ओवरऑल इन द सेंस कि आप एक टीम लीड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपका एंगेजमेंट कनेक्ट कितना है, आप कितना एंगेजमेंट को होल्ड कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों के बेसिस पे आपको असेस किया जाता है। आपकी मतलब पूरी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फीडबैक्स अच्छे होने चाहिए, ऑनसोर से कनेक्ट अच्छे होने चाहिए। तो वहां पे थोड़ा सा हिरार्ची में प्रमोशन लेवल के लिए ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड अगेन पॉलिटिक्स, लाइक अर्चित सर सेड कि आपकी विजिबिलिटी वगैरह कितनी है विद योर मैनेजर सीनियर मैनेजर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जिसकी ज्यादा विजिबिलिटी हो तो डेफिनेटली वो उसको प्रेफर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइम बाद ऐसा है कि जहाँ आपको ये थोड़ा सा ना अपना अपने आप को ना एक दिखाना पड़ेगा कि हाँ डेफिनेटली हार्ड वर्क सब करते हैं, सब सारे ही मेहनत करेंगे, सारे ही वर्क करेंगे, लेकिन अगर वो विजिबिलिटी हो ना तो वहां पे बहुत फायदा रहेगा, बिकॉज पीपल वुड नो, दे विल रिलाई ऑन यू कि हाँ ये चीज ये पर्सन दे कैन मैनेज इंटायरली वेरी वेल। तो वहां पे वो चीज आपके लिए एक एडवांटेज हो जाता है। राइट। लीज पॉलिसी या जैसे अच्छे सैलरीज सर। का क्या क्या स्टेटस है ईवाई में? हाँ, एक बार मैं स्टार्टिंग सैलरी का पैकेजेस बता कितने हैं? देती हूँ। हाँ तो जी। सैलरी का जब ना मैंने ज्वाइन किया था इनिशियली, दैट वाज 4 year बैक, सो मेरी एज अ सीनियर वन रोल आई ज्वाइन, तो तब मेरी थी स्टार्टिंग पैकेज और 9 lakh per annum. आई थिंक इट माइट बी अराउंड 10 or 11, आई थिंक सो, मे बी राइट। मैक्सिमम 11, एवरेज 10 or 11 यू कैन कंसिडर।
and depending on your like rating, it gets increased. In performance evaluation also, they rate you on a different category, like whether you are meeting expectation or whether you are a more like differentiating kind of feel like. And there's also strategic impact. So again, depending on rating also, your pay and bonus, they get increased accordingly. Right. So yep, so Got it. that is the like overall overview of salary that you get over here. Like the senior one, that's approximately I can say 10 or 11. Staff one, like Priyanshu said, it might be around approximately average of 6 lakhs maybe. So that is Right. the overall salary range. But I do not know of the manager and senior manager. So Right, yes, right, 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 right. Great, yes. great वरना great. राइट गाइस, तो बताओ भाई, मैंने आपके बिहाफ पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, और कोई डाउट्स रह गए हैं तो फटाफट से चैट में लिखेंगे, क्योंकि 1 घंटा ऑलरेडी हो गया है और 1 घंटे की मोहलत हमने मांगी थी प्रियांशु, आयुषी और तमन्ना से। तो अब फटाफट से क्वेश्चंस पूछ लो, 5 मिनट्स में सेशन को क्लोज करेंगे। क्विकली इन द चैट गाइस, और किसी को हैंड रेस करना है तो क्विकली कर लो। वील टेक 2-3 क्वेश्चन, देन वील क्लोज द सेशन। क्या सिर्फ डिलॉइट में हाइब्रिड कल्चर है? प्रियांशु, तमन्ना। Actually, currently KPMG maybe it's hybrid model is there. Like ओके, 2 days mandatory we need to go to office, and it can be any day. So yeah, hybrid model is there. राइट, EY may be a hybrid. 2 days they have mandatory done it, and in a month, like they have done around 8 or 10 days, depending on the number of week. So hybrid is there. Like it's not completely work from home. अगर आपको exception भी लेनी है उस चीज में, तो definitely you can take approval from SMA, और and you can take approval कि इस week आप नहीं आ पाओगे, तो it is there. अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत कॉमनली आता है गाइस कि जैसे वैभव पूछ रहे हैं कि इन व्हाट कंपनीज कैन वी स्विच आफ्टर गेटिंग इनटू बिग फोर? तो ऑब्वियसली यू कैन मूव इनटू द कंसल्टेंसी फर्म्स में, तो आप जा ही सकते हैं, अमंग्स बिग फाइव तो आप मूव कर ही सकते हैं। बट क्या ग्लोबल से इंडियन आर्म्स की तरफ भी जाया जा सकता है? अगर हम डिलॉयट यूएसए से डिलॉयट इंडिया की तरफ जाना चाहे, केपीएमजी केजीएस से केपीएमजी में जाना चाहे, तो इज दैट ऑल्सो पॉसिबल? अर्चित से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इट इज समवट लाइक डिफिकल्ट टू गेट इनटू द इंडियन प्रैक्टिस, बिकॉज ऑब्वियसली वो आपको इंडियन प्रैक्टिस, इंडियन एक्सपीरियंस के बेसिस पे जज करेंगे। तो वहां पे आपका जब एक्सपीरियंस ही नहीं वो होगा, आपकी ग्लोबल वाली एक्सपीरियंस हम्म, होगी, तो फिर वहां पे थोड़ा सा इट गेट ट्रिकी कि हम्म, आप फिर वो आपको कब पता ही नहीं होगा लॉ एंड अपडेट, मतलब आई मीन इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कौन से रिसेंट अपडेट आए। जैसे हमारे टाइम पे कारों का वॉज लॉट ऑफ देयर, जब हम हम्म, ग्लोबल में हो गए तो वो क्वेश्चन दे विल आस्क इन एस्पेक्ट ऑफ इंडियन प्रैक्टिस, तो वहां पे इट विल गेट ट्रिकी एज पर माय व्यू। राइट, 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 राइट। और मैंने एक चीज और भी ऑब्जर्व करी है कि द पीपल हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम ग्लोबल टू इंडियन आर्म्स, उनको थोड़ा सा पे कट भी लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ओनली, कि भाई आपका एक्सपीरियंस उतना काउंट नहीं करा जाता बाय द इंडियन फर्म्स, और इंडियन फर्म्स में पैकेजेस भी थोड़े से ऑन अ लोअर साइड होते हैं। एज आयुषी सेड कि भाई डिलॉयट यूएसआई में इफ यू आर गेटिंग 12 एलपी है, तो आपको इंडियन आर्म्स में वो 10 या 11 ही मिलेगा। तो आप जैसे जैसे राइज करेंगे तो ग्लोबल में आपके पैकेजेस भी थोड़े से ज्यादा रहेंगे। उसके पीछे सिंपल रीजन है, वहां पे जो उनका रेवेन्यू आ रहा है वो डॉलर्स में आ रहा है, सारे फॉरेन क्लाइंट्स हैं, सो दे आर एबल टू गिव मोर टू द एम्प्लॉयज एज वेल, राइट? हाँ जी, पर्व के पास चलते हैं। पर्व, फटाफट से क्वेश्चन पूछ लो। या हाय एवरीवन। हाँ सर, जी, एक मेन डाउट ये था कि वो जो अपना एक लास्ट इंटरव्यू हुआ था ना सर, हाँ जी, अ, हाँ जी। सर उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 पॉइंट्स है, क्योंकि सर वो फीडबैक्स वगैरह मैंने मांगे थे, लेकिन वो फिर उनका कुछ रिप्लाई वगैरह नहीं आया था, जैसे हमारी बात हुई थी ना लास्ट टाइम। क्या मांगे थे? फीडबैक्स फीडबैक्स मैंने मांगे थे उनसे, ओके, जो एचआर ओके। थे और जो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ डायरेक्टर थे जी। और एएम थे उनसे। राइट, राइट, तो राइट। लेकिन सर अब 2 ही पॉइंट आ सकते हैं कि मेरी आर्टिकलशिप अगर ये इंटरनल ऑडिट की फील्ड में हुई है, तो फिर या तो हम्म, वो सॉक्स का जो पार्ट है हम्म, जिसमें मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, या तो वो एक हो सकता है रीज़न, या फिर हम्म, जो अपने सॉफ्ट स्किल्स है वो शायद हो सकता है रीज़न। हम्म, तो सर मतलब
अभी मेरी आर्टिकलशिप अगर इंटरनल ऑडिट में हुई है तो मुझे खाली वो इंटरनल ऑडिट का ही एक्सपीरियंस है, तो उसके ऊपर से अगर मुझे ग्लोबल आर्म्स के अंदर अगर मुझे अप्लाई करना हो तो मतलब मुझे क्या पाथवे चूज करना चाहिए? पर देखो, अभी अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताया आपको, हाँ। प्रियांशु आयुषी तमन्ना तीनों ने ही, कि भाई आपको आपके बेसिक्स पे काम करना है और साथ में आपका रिज्यूमे स्ट्रांग रखना है। ठीक है, तो बेसिक स्टार्ट ऑडिट के क्वेश्चंस भी आने चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग के क्वेश्चंस भी आने चाहिए, और कुछ इंटरनल ऑडिट के भी पूछे जा सकते हैं। एक में हमारा आई अंडरस्टैंड कि अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, बट बाकी फर्म्स में आप जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस है तो आपको ग्लोबल आर्म्स में कंसिडर नहीं करा जाएगा, एज पर माई एक्सपीरियंस। प्रियांशु, आप हाईलाइट करना चाहेंगे इस पे? आपके या कोलीग्स में कोई हो जिनका मिड साइज फर्म्स में इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस हो, तो आई गेस कि उन्होंने भी ज्वाइन किया होगा आपके साथ। या ऑब्वियसली लाइक जैसे मेरा ही इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस था मोस्टली, और स्टैट्यूटरी ऑडिट का बहुत कम था। बट या क्योंकि मैंने वो भी चीज़ें पढ़ रखी हैं लाइक मटेरियलिटी सैम्पलिंग, सो मैंने वो ब्रश अप कर लिया था थोड़ा, कि अगर कुछ इससे भी अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो मैं इसका जवाब दे दूं, ये नहीं कि डिटेल में। बट हाँ, मेरा मेन फोकस था जो मैंने रेज्यूमे में दिखाया इंटरनल ऑडिट, वो मैं थोड़ा मत पूरे अंडरस्टैंडिंग हो मेरी पूरी तरीके से। बट हाँ, बेसिक्स लाइक आपको पता होना चाहिए ऑडिट के जो भी बेसिक्स हैं, क्योंकि हम वो पढ़ते हैं। सो या हम्म। राइट। आयुषी, एक चीज और बताइएगा, डिलॉयट में और जीटी में दोनों में ही, इज इट द प्रोफाइल ऑफ ओनली स्टैट्यूटरी ऑडिट इन विच दे हायर, या फिर इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल में भी हायर करते हैं? नहीं करते हैं मेरे साथ, आई गेस 2 लोगों को तो मैं जानती हूँ पर्सनली, जो जिनकी पूरी आर्टिकलशिप इंटरनल ऑडिट से हुई थी, ओके। बट फिर वो स्टार्ट ऑडिट में आए। ओके, एंड अभी जो डिपार्टमेंट है वो स्टार्ट ऑडिट का ही है इन द ग्लोबल आर्म्स, या फिर और भी डिपार्टमेंट्स अदर देन स्टार्ट ऑडिट? ऑडिट में हाँ है, और भी है। ओके, बट मेजर हायरिंग इज आई गेस ओनली इज फॉर फॉर स्टैट्यूटरी स्टार्ट, ऑडिट। या राइट, 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 राइट। राइट, तो पर्व आप बिल्कुल जा सकते हो, है ना? कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। यू जस्ट नीड टू अप्लाई अगेन इन अदर फर्म्स, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आएंगे डेफिनेटली। श्योर सर। राइट। हाँ जी, पर थैंक यू सर। राइट। थैंक यू। हर्षुल के पास चलते हैं। हर्षुल, रुतुल, देखो हम सेशन 10:15 पे क्लोज करेंगे, फटाफट से पूछ लो। सर हर्षुल, आप क्विकली। हाँ जी। सर आपकी इंटरव्यू आर्टिकलशिप के लिए मैंने इंटरव्यू देना था, ओके। तो उसके लिए मेरे को ऐसा था कि प्रिपरेशन करनी थी, तो आपकी गाइड बुक वगैरह कुछ अवेलेबल होती फ्री है? इंटरव्यू रिसोर्सेज का जो कोर्स है आप उसमें देख लीजिए, उसमें सारी गाइड बुक्स अवेलेबल है। thinkingbricks.in पे जाइए, फ्री इंटरव्यू रिसोर्सेज का कोर्स है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। राइट, थैंक यू। हाँ जी, रुतुल। हेलो, जी रुतुल। हेलो, एम आई हाँ ऑडिबल? जी रुतुल। ओके, यस, यस, यस। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अहमदाबाद में काफ़ी सारे केपीओ कंपनीज है, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कुछ है जो कि वहाँ पे यूएस और मतलब ऑडिट का वर्क नहीं करते, पर वहाँ पे जो क्विक बुक ऑनलाइन पे जो अकाउंटिंग रहता है फॉरेन का, जैसे हम्म, यूके अकाउंटिंग, यूएस अकाउंटिंग, हम्म, तो हम्म, प्योरली उसी में वर्क करते हैं, तो उसमें जाने के लिए हम्म, काम लगता है, या क्या वहाँ पे उस तरीके के रोल होते हैं, या फिर यूजलेस है मतलब करना? हम्म। किसी का एक्सपीरियंस रहा है क्या, प्रियांशु, आयुषी, तमन्ना, जहाँ पे आपने देखा हो कि भाई अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क भी आउटसोर्स हो रहा है टू द बिग फोर या बिग फर्म्स, या फिर इज इट मोस्टली अराउंड अश्योरेंस ओनली? एज पर माई अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग रिलेटेड नहीं रहते, मोस्टली ऑडिट एंड हम्म, एश्योरेंस का ही हम्म, काम हम्म। आउटसोर्स ओके, करते हैं वो यहाँ पे। राइट, राइट। ओके। तो Same जो here, अकाउंट, just like mostly it is audit and assurance. But I think mediocre like firms में ऐसे हो रहे हैं. Like one I know, Citrin Cooperman, जो कि I think हाँ, अहमदाबाद में, हाँ, and हाँ। they do the like they have the accounting or something, but that is also a mediocre firm. Like they outsource accounting work as well. But in Big राइट। Four, mostly I've heard audit and assurance. और That's लाइक वहीं अगर रुतुल। कोई हाँ जी। टैक्सेशन करता है जैसे यूएस टैक्स, तो आई थिंक या करते हैं, या क्योंकि यूएस ईवाई में टैक्सेशन का काम है मेरे ख्याल। आउटसोर्स होता है एंड ऑडिट एश्योरेंस हाँ, का। बट yes. अकाउंटिंग लाइक इट्स ना के बराबर है वो। हाँ, मतलब अगर अपना विजन आगे बिग फोर का है तो फिर उसमें जाना वो नहीं है।
रादर मेरी भी मतलब रादर देन रिकमेंडेशन नहीं टैक्स में रहेगी कि जाना हाँ, सही एज है। अ सीए आपको अकाउंटिंग के रोल में अगर आप जाएंगे तो वहां से माइग्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। उससे अच्छा ही रहेगा कि आप किसी मिड साइज फर्म से शुरू करें हाँ, एश्योरेंस के रोल में, राइट, यस, ओके, हाँ, है ना। क्योंकि जितनी भी राइट, आउटसोर्सिंग राइट, फर्म्स है ना रुतुल, दिल्ली में भी बहुत हैं, हाँ, लेकिन ऑल ऑफ देम आर हायरिंग ग्रेजुएट्स फॉर कैरिंग आउट देयर अकाउंटिंग वर्क, और तभी मतलब वो प्रॉफिटेबल भी रहता है, राइट। अगर कोई सीए है भी तो सीए फिर सुपरवाइज करते होंगे 10 ग्रेजुएट्स के काम को, ठीक है। बट हाँ, इफ यू आर हाँ, एमिंग बट इफ यू आर एमिंग फॉर अ assurance रोल एंड स्पेशलाइजेशन इन बिग फोर ओनली, देन आई वोंट रिकमेंड कि आपको उस रोल के लिए भी जाना चाहिए, राइट। या, या, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, राइट। हाँ जी गाइस, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मोस्टली हो गए हैं चैट में। गाइस वी हैव कवर्ड दीज क्वेश्चंस, सीपीए वगैरह के अलग से डील कर लेंगे बिकॉज 40 days हैव पास, इन आर्टिकलशिप की क्वेरीज भी अलग से ले लेंगे। हर्षल आपका क्वेश्चन हमने ले लिया है, राइट। और आर्टिकलशिप के लिए भी गाइस सिमिलर ही चीजें प्रिपेयर करनी है, बिग फोर्स के आर्टिकलशिप के भी सेम इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, हम सबने दिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो वी हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच प्रियांशु, आयुषी, तमन्ना फॉर ज्वाइनिंग इन एंड गाइडिंग द स्टूडेंट्स। और गाइस पूरा 1 घंटा आपके साथ लगाया है फ्रॉम द बिजी शेड्यूल, और आपसे कनेक्टेड भी रहेंगे। तमन्ना, आयुषी, प्रियांशु, आप कोई भी, आपके बिहाफ पे आई थिंक मैं बोल सकता हूँ कि भाई आपके पास कोई भी स्टूडेंट आएंगे कोई भी क्वेरी Yeah, लेके हेल्प सीख करने, तो जरूर से आपको हेल्प मिलेगी, sure. राइट। बिल्कुल, या राइट, Sure, सो ग्रेट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड गाइडिंग एवरीवन। और आपको परेशान करते रहेंगे हम आगे, ठीक Yeah, है ना। definitely. अब मैं हक से बोल definitely, सकता हूँ कि अब Yeah, आपको परेशान हम करते रहेंगे, और definitely, स्टूडेंट भी आपको बहुत परेशान करने वाले हैं, जी, राइट। definitely. थैंक यू सो मच गाइस, एक बार सेशन लिख के जाइए चैट में कैसा लगा, डाउट्स क्लियर हुए, अच्छी गाइडेंस मिली फॉर एवरी प्रोफाइल। लिंक्डइन प्रोफाइल्स मैं आपको ग्रुप्स पे भेज दूंगा, ठीक है ना। प्रियांशु की, आयुषी की, तमन्ना की, सबकी आपको लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाएंगी। ग्रेट, इट वाज एन अमेजिंग सेशन, ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग, थैंक यू, ग्रेट गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, और फिर कुछ बढ़िया सी चर्चा करेंगे। थैंक यू अगेन तमन्ना, आयुषी, प्रियांशु, विल सी yeah, यू अगेन, विश यू अ वेरी गुड नाइट, थैंक यू। yeah. Bye everyone. Thank थैंक you यू Good so night. much, आदित्य, बाय sir. एवरीवन। Thank you, everyone. Bye. Nice to meet you all. Bye bye. Take care.